So let us start. Good morning, everyone. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. So this is our. We have started the traffic engineering module, Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Okay, wait. Someone is trying to join. And this is the second lecture under your traffic engineering. In the last lecture, in the previous lecture, we have learned what are the different elements of transportation system, and among those elements, basically there were four types: way, vehicle, road user, and your traffic control devices. Okay. So about the way, we have learned the geometric design, highway geometric design or pavement design. Okay. And in the previous lecture, we have learned what are the road user and vehicular characteristics. Okay, and the remaining element we will learn in our later classes. Okay, that is the traffic Yes, ma'am. control devices. Okay, so let us go into the details about this traffic system. Okay, so this is the topic: traffic flow characteristics. See, why we are considering traffic to be as a flowing material, like a liquid. We are comparing the traffic with the liquid. Okay, why? Because it has similar properties. Say for example, what are the properties of or how we can define a liquid? See, it has several properties, right? So one of the properties, what? Density. What is the density of that liquid? Okay. What is the concentration? Density or concentration, both are same. Okay. What is the discharge? Discharge, or we can say, what is the flow value of that liquid, right? What is the velocity of that liquid if it is flowing? So you have already learned in your fluid mechanics chapter Yes, or ma'am. subjects. Similarly, here also, since we are comparing the traffic to be equal, it is like a or similar to the fluid. Traffic is compared with the liquid or the fluid. So whatever the characteristics or the properties that will define a liquid, here also it has similar type of the properties. Okay, names are similar. Yes, ma'am. The property name is similar in this case also. Yes, ma'am. Okay, say for example, there we are learning about the concentration or density. Here also we are we will learn about the density. What is the traffic density? What is the traffic concentration? Okay, in the fluid we have learned what is the liquid flow or liquid discharge values. Okay, similarly here also we will learn what is the traffic volume or traffic flow. Okay, what is traffic flow rate? What is traffic flow? What do you mean by traffic volume? Okay, so there also you have learned what is volume. In case of your fluid mechanics, here also we will learn one term which is traffic volume. There also you have learned velocity. Here also we will learn what is the traffic speed. Okay, so basically these are traffic will act like a fluid. Okay, it is flowing from one point to another. So in order to define what are the traffic characteristics, we have to find out what are these parameters. What is the traffic volume? What is the traffic density? What is the traffic speed? All these things. So this topic will come under this heading, traffic flow characteristics. Okay. So today we will learn, see, what do you understand by the traffic stream? See, here also we are considering traffic as a stream, traffic stream. Okay. Establish the relationship between different parameters. First, we will learn what are those parameters. Okay. There will be a relationship between traffic volume, traffic density, traffic speed, traffic density. We will learn what are those relationships. Okay. And we will, based on it, we will try to solve one numerical if time permits. Okay. So now basically what is traffic streams? Traffic stream, see, it is moving like a fluid only. Okay, suppose this is a pipeline and these are the water molecules. Okay, this traffic are the individual vehicles are the water molecules. See, they are acting like a fluid only. They are flowing from one direction to another like a fluid only, right? And the way, this way is acting like a pipeline, right? From where the water is flowing, similarly from this way is acting like a conveyor from where this vehicles are moving from one direction to the another. Okay, so our traffic stream consists of what? Individual vehicles, individual drivers,
also the roadway, okay, and the environment means its design, your geometric design, all this thing. Okay, so traffic stream comprises of individual drivers, vehicles, and roadway. Okay, so driver behavior and vehicle characteristic typically vary. That means what? See, suppose one driver, as I said, road user characteristics, right? We have learned what are the road user characteristics. Those characteristics will not be same. Okay, it will vary from person to person. Say for example, कि किसी किसी का परसेप्शन रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, किसी किसी का परसेप्शन रिएक्शन टाइम बहुत कम है. ओके, वी हैव लर्न दैट इट डिपेंड्स, द कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या था? ड्राइवर का पीआरटी. ओके, दैट इज परसेप्शन रिएक्शन टाइम, कि वो कितना जल्दी रिएक्ट करता है कोई भी सिचुएशन को. ओके, सो इसीलिए एंड दिस परसेप्शन रिएक्शन टाइम vary from person to person. So obviously ड्राइवर का कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैरी करता है. ओके, सो इट इज, ऐसा नहीं कि सब के सब एक ही टाइप के ड्राइवर का एक ही टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर रहा है, या सब के सब एक ही टाइप के व्हीकल्स जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहा. व्हीकल्स विल आल्सो डिफर. तो व्हीकल डिफर करेगा तो उसका स्टैटिक बोलो, डायनामिक बोलो, सब कैरेक्टरिस्टिक्स विल आल्सो डिफर. ओके, सो नो टू ट्रैफिक स्ट्रीम विल बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम वे. इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करना. ठीक है, लेकिन वाटर में क्या था? फ्लूइड में सब मॉलिक्यूल सेम ही रहता है, राइट? बट हियर इट इज डिफरेंट. ट्रैफिक स्ट्रीम विल एक्ट डिफरेंट. ओके, यस मैम. नाउ व्हाई, क्यों ऐसा होता है? एज आई सेड, सबका अपना अपना रिएक्शन टाइम रहता है, सबका अपना अपना फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है, सबका अपना अपना विजन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, राइट? हियरिंग प्रॉपर्टी, विजन प्रॉपर्टी, ये सब अलग अलग रहता है, राइट? सो ये वेरिएबिलिटी हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि हमको मतलब सबके सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा तो उसको अलाउ करेंगे? नहीं, देयर विल बी सम रेंज, कि हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा वेरी करेगा, लेकिन देयर इज सम रेंज, मतलब उतना से लेकर उतना तक ही ये वेरी कर सकता है. दैट इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी. ओके, जैसे पाइपलाइन में क्या बोलते हैं? अनलाइक ट्रैफिक फ्लो इन्वॉल्व्स वेरिएबिलिटी अनलाइक पाइप फ्लो, क्योंकि पाइपलाइन में वाटर मॉलिक्यूल सब एक ही टाइप का होता है, सबका डेंसिटी एक ही है, सबका मतलब वाटर का डेंसिटी कांस्टेंट सेम है, राइट? तो वो सेम वे में, सेम स्पीड, सेम उसमें फ्लो कर रहा है. लेकिन ट्रैफिक में ऐसा नहीं होता, स्ट्रीम टू स्ट्रीम वेरी करेगा. ओके, सो गिवन ट्रैफिक फ्लो विल वेरी बाय टाइम एंड स्पेस. देखो, टाइम और स्पेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि सपोज आज एकदम सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग में तुम जाओ तो वो तब का ट्रैफिक कंडीशन इट विल बी डिफरेंट. ठीक है, अब जब पीक आवर रहता है, मतलब कि जैसे 10 बजे, ठीक है, तब क्या होता है कि तब का ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहता है, राइट? सो इट इज वेरी बाय टाइम ऑल्सो, राइट? और स्पेस के हिसाब से भी वेरी करता है, कि जैसे अर्बन इलाका है, जैसे कोलकाता साइड में देखो अलग टाइप का ट्रैफिक रहता है, और हाईवे में मतलब टुवर्ड्स रूरल एरिया जाओ जहाँ पे हाईवे ये सब रहता है, वहाँ पे अलग टाइप का ट्रैफिक रहता है. कैसे अलग रहता है? स्पीड वेरिएशन होता है, मतलब है, डेंसिटी अलग हो जाता है, वॉल्यूम अलग हो जाता है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड स्पेस योर ड्रिवन ट्रैफिक फ्लो विल वेरी. ओके, और अदर सब कुछ तुम्हारा कंस्ट्रेंट, मतलब जो कांस्टेंट जो भी है वो सब है ड्यू टू फिजिकल एंड कॉम्प्लेक्स ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सब तो है ही, इसकी वजह से तो वेरिएबल तो रहेगा ही. ठीक है, कि मतलब ये जो डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन अलग होगा, नीचे का रोड का अलग होगा. ठीक है, ड्राइवर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी तुम्हारा खुद का ही कैरेक्टरिस्टिक आज सुबह अलग का रहता, आफ्टरनून में अलग का हो सकता है. ओके, इट मे वेरी. ओके, so because of this only there is the variability in the traffic stream. फिर भी ये वेरिएबिलिटी होने के बावजूद भी बट देयर मस्ट बी सम रेंज, मतलब उतना रेंज में, ये रीजनेबल रेंज में चेंज होगा. मतलब कि एक दूसरे से अलग जो डिफरेंट आ रहा है, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक स्पीड, ये सब अलग अलग आ रहा है, दैट विल बी विद इन द रेंज. ओके, एग्जांपल एक देखो, जैसे यहाँ पे दिया है, इन अ 65 किलोमीटर पर आवर रोडवे, मतलब जिसका डिजाइन स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कोई कोई ड्राइवर क्या करता है, उससे कम में भी चला सकता है गाड़ी को, राइट? और कोई कोई ड्राइवर उससे ज्यादा भी चला सकता है. ठीक है, तो इट इज नॉट के एग्जैक्ट उसी में रहेगा, देयर विल बी रेंज, वेरिएबल होगा लेकिन एक रेंज में रहेगा. ओके, सो this is called the range. Now comes what?
अब डिटेल्स में जाने से पहले हमको वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज। फैसिलिटी का मतलब क्या है एनीवन? फैसिलिटी, यहाँ पे ट्रैफिक स्ट्रीम के लिए फैसिलिटी क्या है कि ये फैसिलिटी मतलब कैसा सुविधा। टाइप का रोड। हाँ हाँ, फैसिलिटी मतलब सुविधा। फैसिलिटी का मतलब है यहाँ पे कैसा टाइप का वे है, रोडवे कैसा है, ठीक है, मतलब जो रास्ता तुम यूज कर रहे हो वो किस टाइप वो का कौन है, सा वेदर कौन सा टाइप का है? हाँ क्या वो अनइंटरप्टेड है या तुम्हारा इंटरप्टेड टाइप का है, ठीक है। अनइंटरप्टेड किसको बोलते हैं? अनइंटरप्टेड उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल इंटरप्शंस नहीं आएगा। से फॉर एग्जांपल हाईवे, हाईवेज में तुम देखे हो जब भी हाईवेज में जाते हो एक कंपैरिजन करो हाईवे और जो तुम लोग का कोलकाता में जो भी है स्ट्रीट्स जो है वो वाला स्ट्रीट और हाईवे का स्ट्रीट, दोनों में क्या अंतर है मेनली? दोनों में से पहले बोलो कौन सा अनइंटरप्टेड होगा, हाईवे ना कि जो अर्बन स्ट्रीट है वो वाला? अर्बन। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब है कोई रुकावट नहीं आएगा, मतलब तुम जिस स्पीड में जा रहे हो उसी स्पीड में लगातार जाओगे, ओके। तुमको वो हाईवे में होगा। यस हाईवे में, राइट। क्यों? बिकॉज अर्बन में वहां, तो हाँ अर्बन अर्बन में में देखो रुकावट है। यस अर्बन में क्या है, बहुत सारा एक्सेस रोड रहता है, मतलब बीच बीच में कोई कोई रोड ज्वाइन कर रहा है, इंटरसेक्ट करता रहता है, राइट। Yes, ma'am. इंटरसेक्शन करने की वजह से वहां पे देखो सिग्नल्स भी आ जा सकता है, राइट। कभी कभी तुमको ma'am. साइन बोर्ड भी, मतलब साइन बोर्ड तो है लेकिन सिग्नल्स की वजह से बेसिकली क्या हो जाता है, तुमको रोकना पड़ रहा है, तुमको स्पीड रिड्यूस करना पड़ रहा है, राइट। सो दैट इज द इंटरप्टेड। लेकिन हाईवेज में जनरली हाईवे क्या में होता कोई है, उतना ज्यादा एक्सेस नहीं रहता है, मतलब तुम हाईवे को साइड साइड से यूज नहीं कर पाओगे, राइट। कहीं से एक एंटर करना पड़ता है, उसी फिर स्पीड से तुम Yes. चलते चलते जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड द अनइंटरप्टेड। सो नो एक्सटर्नल इंटरप्शंस, ओके, प्राइमरली ऑन दी फ्रीवेज, इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड। लेकिन कहीं कहीं पे ये हाईवेज भी इंटरप्ट हो जाता है। इंटरप्ट मतलब तुम्हारा वो स्पीड रिड्यूस हो जाता है, ओके। और जिस स्पीड से जा रहे हो, जिस फ्रीली कंडीशन से जा रहे हो वैसा नहीं जा पाओगे। तो कब होता है जनरली, व्हेन सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि टोल प्लाजा, तो हाईवे को एंटर किए हो तुम, ठीक है। अब एग्जिट करने के बाद भी तो, एग्जिट करने से पहले भी तो एक टोल रहता है, राइट। तो उस टोल में Yes, क्या ma'am. हो जाता है जनरली, तुम लोग का देखो तुम्हारे सामने बहुत सारा व्हीकल सामने खड़ा रहता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो Yes, रहा ma'am. है, यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड, राइट। सो इस कंडीशन में भी तुम्हारा जैसे कभी बहुत ज्यादा हाई क्या बोलते हैं पीक आवर, मतलब बहुत सारा व्हीकल्स आ गया है, राइट, पीक आवर्स है, तब भी तुम्हारा वहां पे अनइंटरप्टेड हो जाता है, सॉरी इंटरप्टेड हो जाता है इन दैट केस, ठीक है। जनरली हाईवेज, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवे ये सब है अनइंटरप्टेड, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस में वो इंटरप्टेड टाइप का एक्ट करेगा जहां पे तुम्हारा स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है, ओके। तो इंटरप्टेड क्या है, ये है जो हम लोग का अर्बन स्ट्रीट, देखो यहाँ से भी एक रोडवे एक्सेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये इधर से आ रहा है, तुमको रुकना पड़ रहा है, राइट। तो वैसे ही है। सो देयर आर वेरी मच ऑफ इंटरप्शंस, एक्सटर्नल इंटरप्शंस आ रहा है, राइट। सो जैसे सिग्नल साइन जहाँ पे रहता है वहां पे भी इंटरप्शंस ये सब आ रहा है, तुम्हारा स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है, ओके। और उसकी वजह से ये जो क्यू फॉर्म हो रहा है, क्यू फॉर्म की वजह से तुमको डिले हो जा रहा है, राइट। प्लेटून्स, इसको बोलते हैं प्लेटून्स ऑफ व्हीकल्स। ये जो ट्रैफिक स्ट्रीम है इसमें देखो प्लेटून्स, मतलब एक के पीछे एक गाड़ी गाड़ी खड़ा हुआ है प्लेटून हिसाब में, ठीक है। सो इंटरप्टेड इज दिस केस, अनइंटरप्टेड इज दिस केस, ठीक है। तो हम लोग जो भी ये ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम, किस चीज के लिए निकालेंगे? जनरली हम इस चीज में हम सही से उसका ट्रैफिक डेंसिटी हमको या ट्रैफिक जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट ऑब्टेन accurate value of those traffic density, traffic volume in such cases, okay, जहाँ पे इंटरप्टेड होगा, क्योंकि बार बार तुमको रुकना पड़ रहा है, कहीं से इंटरप्ट हो रहा है, राइट। तो कहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को मेनली ये जो अनइंटरप्टेड है यहाँ पे सर्वे करके यहाँ से हम लोग को वो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ओके। सो ये जो ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम कहाँ से निकल रहा है? मेनली फ्रॉम द अनइंटरप्टेड फैसिलिटीज से, ओके। तो जब भी सर्वे करने जाओगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्वे नहीं होता है, यहाँ का कुछ अलग सा सर्वे होता है, हेडवे जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वो अलग सा सर्वे होगा, ओके।
सो मेजर डिफरेंस हम बोल रहे थे इम्पैक्ट ऑफ टाइम, किसमें तुम्हारा क्या बोलता है इंटरप्शन की वजह से टाइम में लैग हो जाएगा, राइट। इंटरप्टेड में, अनइंटरप्ट में तुम्हारा टाइम लैग नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द रोडवेज, ठीक है, जैसे अनइंटरप्टेड फैसिलिटीज में रोडवेज आर अवेलेबल टू यूजर्स ऑल द टाइम, मतलब किसी को रुकना नहीं पड़ रहा है, वो फ्लो होता जा रहा है, दे आर यूजिंग ऑल द टाइम, ओके। वेयरएज इंटरप्टेड में रुकना पड़ता है, कभी कभी ट्रैफिक डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस की वजह से रुकना पड़ता है, साइंस, सिग्नल्स, इस सब की वजह से, ओके। नाउ लेट अस गो टू द पैरामीटर्स। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स हम दोनों एक ही है, ओके। तो मेनली इसका दो भाग में कर दिया है कि हम लोग को बोलेगा व्हाट आर द ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर और ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, ओके, मैक्रो, माइक्रो, मतलब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रो का मतलब क्या है बोलो तो? मैक्रो का मतलब क्या लग रहा है तुमको? मैक्रो मतलब है कि तुम देखो ट्रैफिक, अभी तो किए, अभी कौन आ गया? अंकुश पाल, व्हाई सो लेट? हो गया था इसलिए देरी हो गई। देखो ट्रैफिक मैक्रो मतलब है कि बड़ा लेवल में, ओके। मैक्रो मतलब बड़ा लेवल में, माइक्रो मतलब छोटा लेवल में, ओके। तो बड़ा लेवल में हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर को ऑब्टेन करेंगे दैट इज कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक, और जो माइक्रो लेवल मतलब छोटा लेवल में हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो पैरामीटर्स गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। सो कंसिडरिंग द ट्रैफिक स्ट्रीम एज अ होल, मतलब एक देखो एक स्ट्रीम में बहुत सारा व्हीकल होता है, राइट, हो सकता है, तो वो सब व्हीकल्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल का कंसीडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि वो सपोज एक ट्रैफिक स्ट्रीम में 100 व्हीकल्स है, तो टोटल 100 व्हीकल्स का एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक स्ट्रीम का, और तुम्हारा डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो उसको अगर हम मेजर करेंगे इन दैट वे, मतलब पूरा 100 व्हीकल्स का एज अ टोटल हम कंसिडर करके, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द मैक्रो। अब माइक्रो मतलब क्या है, हम वो 100 व्हीकल में इंडिविजुअल व्हीकल का हम कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ के ट्रैफिक पैरामीटर्स निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक, okay, studies the behavior of the individual vehicle in the stream with respect to each other, ओके। अब दोनों का रिलेशन है, ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है, मतलब ठीक है, तुम अगर ये मैक्रोस्कोपिक निकाल पाओगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो भी तुम इजीली निकाल पाओगे यूजिंग द फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो सिर्फ, ओके। जैसे मैक्रोस्कोपिक अगर निकल आया, सपोज ये है 3 ठो मैक्रोस्कोपिक, जैसे वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, ये क्या है, ऑन एवरेज जो ट्रैफिक स्ट्रीम का वॉल्यूम, ट्रैफिक स्ट्रीम का स्पीड, ट्रैफिक स्ट्रीम का डेंसिटी, ठीक है। और इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल है तुम्हारा वॉल्यूम का कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो है, छोटा लेवल वर्जन क्या है, हेडवे, ठीक है। देखो ये आवर में है, ये पर आवर है, ये वाला हेडवे सेकेंड में आएगा, ओके। स्पीड का है देखो पर आवर में है यहाँ पे, ठीक है, सो ये वाला ट्रैवल टाइम, स्पीड का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैवल टाइम सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में डेंसिटी है देखो किलोमीटर है, पर किलोमीटर, सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो विल बी स्पेसिंग, ठीक है। ये दोनों को ही हम लोग स्पेसिंग बोल सकते हैं, हेडवे भी स्पेसिंग है, ये भी स्पेसिंग है, लेकिन ये वाला है टाइम हेडवे जो है ये वाला, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस हेडवे, ओके। मतलब कि हेडवे क्या है, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज हेडवे, ओके। हेड टू हेड डिस्टेंस, मतलब एक व्हीकल का, तुम्हारे सामने एक व्हीकल है, तुम्हारे खुद का व्हीकल है, तुम्हारे खुद का व्हीकल का सपोज फर्स्ट बम्पर, एकदम जो फ्रंट बम्पर है उससे तुम्हारे सामने जो एक व्हीकल है उसका फ्रंट बम्पर का डिस्टेंस with respect to time is called the headway and with respect to distance it is called the spacing। ये हम क्लियर करेंगे अभी, ठीक है, बाद में। तो वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है, हेडवे, ओके। स्पीड का है ट्रैवल टाइम, डेंसिटी का है स्पेसिंग, ये याद रखना है, ओके। अब इन लोग का रिलेशन भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग दिस 3, ठीक है। इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप आएगा। अगेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड फॉर प्राइमरीली फॉर अनइंटरप्टेड, हम बोल रहे थे ये इंटरप्टेड में नहीं निकलेगा, ये अनइंटरप्टेड के लिए हम लोग को निकालना है, ओके।
नाउ देखो, फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट देखो क्या है? व्हीकल पर आवर। ओके, सो ये डेफिनेशन थोड़ा याद, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये यूनिट याद रहेगा, तो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी इजीली याद होगा। ठीक है, सो ट्रैफिक वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ द व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ऑन हाईवे और गिवन लेन और डायरेक्शन ऑफ अ हाईवे इन अ स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब कुछ नहीं है, सपोज तुम्हारा ये एक रोडवे है सपोज, ठीक है, ये तुम्हारा बीबीआईटी का गेट इधर है, इसमें क्या करोगे? एक सेक्शन ड्रॉ करोगे, तुम चौक लेकर जाओगे, बीबीआईटी के सामने जो रास्ता है, ठीक है, उसमें चौक से मार्क कर दो, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। ओके, सो नाउ यू विल व्हाट यू विल डू? यू विल कंडक्ट सर्वे, मतलब तुम अब सर्वे करोगे, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे करोगे। अब ये मैनुअली कर रहे हो तुम, Yes, ठीक है? तो मैनुअली के लिए क्या करोगे? तुम यहाँ से देखोगे कि एक व्हीकल इसको क्रॉस किया, ठीक है, किसना? सपोज तुम 12 बजे से स्टार्ट किए, ठीक है, 12 बजे ये वाला व्हीकल इसको क्रॉस किया, ठीक है, अब पीछे वाला जो व्हीकल बस आ रहा था वो इसको क्रॉस करेगा सपोज 12:02 में, ठीक है, या 12:01 में ये क्रॉस करेगा। तो फर्स्ट व्हीकल क्रॉस किया 12 बजे, सेकेंड व्हीकल क्रॉस किया 12:01 में, वैसे तुम करते जाओगे, काउंट करते जाओगे कितना के लिए? 1 आवर के लिए, ठीक है, 1 घंटा, मतलब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कितना व्हीकल्स ये लाइन को क्रॉस किया, दैट इज योर ट्रैफिक वॉल्यूम। क्लियर? अगर पर आवर में कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको क्रॉस किया, सपोज तुम 1 आवर में सपोज बोल रहे थे यहाँ पे 50 व्हीकल्स क्रॉस किया 1 आवर में, ठीक है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 50 व्हीकल्स पर आवर। ओके, 12 बजे से लेकर 1 बजे यहाँ पे काउंट किया तुमने कितना? 50 व्हीकल्स। सो व्हाट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ दिस रोड सेक्शन? ये वाला सेक्शन का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है तुम्हारा? है कि 1 घंटे में 50 व्हीकल्स क्रॉस करेगा, मतलब 50 व्हीकल्स पर आवर इज द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर है ये वाला? हाँ मैम जी, हाँ तो मैम। yes, यूनिट क्या देखो? व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, यूजुअली एक्सप्रेस एज व्हीकल्स पर आवर, और व्हीकल ऐसा व्हीकल को हम VEH कर सकते। ओके, समटाइम इट इज कॉल्ड VPH आल्सो, मतलब व्हीकल्स पर आवर, VPH। ओके, এত লেট জয়েন করছো তোমরা, বুঝতে পারছি না। अब देखो और एक टर्म आएगा, फ्लो। ये ट्रैफिक वॉल्यूम को हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को वी कैन ऑल्सो से इट इज एज अ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है बोलो तो? फ्लो मतलब है कि कितना तुम्हारा कितना लीटर ऑफ लिक्विड हैज बीन फ्लोइंग फ्रॉम अ सेक्शन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड में हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज को, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्चार्ज या फ्लो को हम लोग का यूनिट क्या था? देखो, लीटर पर सेकेंड, राइट? इतना लीटर a volume of water will cross a particular section of a pipeline in a 1 second। 1 सेकेंड में कितना ये फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं फ्लो को, राइट? सो ट्रैफिक वॉल्यूम का भी यूनिट क्या है? देखो, ट्रैफिक वॉल्यूम का भी यूनिट है व्हीकल पर आवर, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स एक सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। सो ये दोनों सिमिलर हुआ ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लो और हम लोग का ये Yes, ma'am. ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फ्लो, राइट? वहां पे लिक्विड था इसलिए लीटर पर आवर या जो भी है, यहाँ पे व्हीकल्स है ट्रैफिक में तो व्हीकल्स पर आवर। ओके, अब जितना ज्यादा फ्लो करेगा मतलब है 1 घंटे में बहुत सारा व्हीकल्स उस रास्ते को, उस सेक्शन को क्रॉस करेगा, राइट? ज्यादा फ्लो मतलब मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स विल क्रॉस दैट सेक्शन, राइट? मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स, ट्रैफिक स्ट्रीम बहुत ज्यादा आ रहा है उसका मतलब। सो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब ट्रैफिक वॉल्यूम इज नथिंग, वॉल्यूम जो बोलता है ना, एक कंटेनर में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स है, वैसे एक तुम्हारा रोडवे में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, दैट इज द वॉल्यूम। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम को कभी कभी फ्लो भी बोलते हैं। ओके, अब फ्लो में और एक टर्म आएगा क्या? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब कि किस रेट में गाड़ी आ रहा है,
ओके, यूनिट इज सेम, मतलब वही है कितना रेट में गाड़ी एंटर कर रहा है, एक सेक्शन को क्रॉस कर रहा है कितना रेट में, रेट का मतलब ही है पर यूनिट टाइम, राइट। सो व्हीकल पर आवर इसका यस मैम। यूनिट है, लेकिन देयर विल बी सम डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जो तुम्हारा but represents the flows that exist for period of time less than an hour। हम लोग का जो ट्रैफिक वॉल्यूम था वो कब था, हम लोग वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, वो 15 मिनट में इतना गाड़ी आया, ठीक है, 10 मिनट में इतना गाड़ी आया, या 60 मिनट में इतना गाड़ी आया, ठीक है। 60 मिनट में अगर 50 व्हीकल्स आए तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज 50 ड्यूरिंग दैट 60 पीरियड, 60 मिनट, ओके। 15 मिनट में 10 व्हीकल आया तो क्या हो जाएगा, 10 इज द वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन 15 मिनट टाइम, ठीक है। वॉल्यूम वही है कि कितना व्हीकल्स आया ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब फ्लो क्या है, रेट ऑफ फ्लो है कि रेट कितना रेट में आएगा, ठीक है। अब वो वाला रेट तुम्हारा इट शुड बी लेस देन एन आवर, ओके। हम लोगों ने वहां पे क्या किया था, टोटल वॉल्यूम जब भी किए थे फ्लो को पर आवर में कन्वर्ट कर दिए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे है, वहां पे है कि एक घंटे में कितना व्हीकल्स आया, दैट इज वहां पे था हम लोग का 50 व्हीकल्स, राइट। सो एक घंटे में 50 व्हीकल्स आया, दैट इज द वॉल्यूम, ओके, दैट इज वॉल्यूम, कि एक घंटे में कितना टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आया, 50 व्हीकल्स आया। अब उसमें से अगर हम उसको 4 भाग कर देंगे तो कितना 15 मिनट का आएगा। सपोज 12:15 में 10 व्हीकल आया, ठीक है, 12:15 मिनट से फिर नेक्स्ट 15 मिनट में नेक्स्ट 20 व्हीकल्स आया, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल 15 मिनट्स में कितना व्हीकल आया, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग जो रेट हम निकालेंगे दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। एक एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल है, देखो 200 व्हीकल्स आर ऑब्जर्व्ड इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है रेट ऑफ, इसका रेट ऑफ फ्लो निकालना है। पहले बोलो वॉल्यूम कितना है, 15 मिनट्स का वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट रोडवे फॉर 15 मिनट्स। इस केस में वॉल्यूम मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 200। yes, so volume is 200 for this 15 minute, volume is 200, ठीक है। अब इसका रेट निकालना है, ठीक है। अब रेट के लिए हम लोग को हर समय क्या करना है, एक घंटे का हिसाब से निकालना है। अगर 15 मिनट्स में इतना आ रहा है तो एक घंटे में कितना आएगा, कितना आना चाहिए बोलो तो, दैट इज द रेट, राइट। अगर 15 मिनट्स में 200 व्हीकल्स आ रहा है तो 1 आवर मीन्स व्हाट, 60 मिनट्स, ओके। तो 60 मिनट्स में कितना व्हीकल आएगा, दैट विल गिव यू द इक्विवेलेंट आवरली वॉल्यूम, ओके। अब ये वाला केस देखो, ये वाला है कितना आएगा, देखो मतलब ये करोगे तो 200/15 इंटू 60 करोगे तो ये वाला आएगा, मतलब 15 मिनट्स में 200 आया, 1 मिनट में 200/15 आएगा, 60 मिनट्स में 200/15 into 60 is giving you this much vehicles per hour। तो ये है उसका corresponding, ये जो डाटा है इसका corresponding rate of flow है 800, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर कि ये 800 अगर व्हीकल्स पर आवर आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि टोटल 15 मतलब टोटल एक घंटे में इतना ही व्हीकल्स आएगा, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ केस में होगा ये वाला, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस रेट में आ रहा है मतलब कि पूरा एक घंटे में इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है, ओके। एक एग्जांपल अगर हम देंगे तो ये वाला देखो, देखो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 5:15 नेक्स्ट 15 मिनट तक व्हीकल वॉल्यूम कितना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब 15 मिनट इंटरवल में वॉल्यूम है इतना 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 मिनट में वॉल्यूम है इतना, ओके। एंड वैसे करके देखो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट करके टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, 15 + 15 30, 30 + 15 45, 45 + 15 1 आवर 60 मिनट्स, ओके। सो 5:06 को हम लोगों ने 4 भाग में कर दिया है, 15 मिनट 15 मिनट करके। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर सर्वे इज 1 आवर विच इज 60 मिनट्स, ओके। तो देखो फर्स्ट 15 मिनट में इतना वॉल्यूम है, सेकेंड 15 मिनट में इतना वॉल्यूम है, थर्ड 15 मिनट में इतना वॉल्यूम है, और फोर्थ लास्ट 15 मिनट में इतना वॉल्यूम आ रहा है, ओके। सो व्हाट इज द रेट। अब ईच 15 मिनट का रेट निकालो, ईच 15 मिनट का रेट ये वाला कैसे आ रहा है, बोलो ये वाला कैसे आ रहा है,
ये है तुम्हारा कि अगर 15 मिनट में इतना व्हीकल आएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्या करना है हमको, इक्विवेलेंट रेट ऑफ फ्लो करने के लिए तो 60 मिनट में कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे कि देखो 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स, ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स में तुम्हारा आ रहा है कितना, वॉल्यूम आ रहा है 1000, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आएगा, ऑब्वियसली 1000 बाई 15, राइट। अब 60 मिनट्स मतलब क्या, 1 घंटा मतलब क्या है, 60 मिनट्स, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना आएगा, दिस इंटू 60, ओके। तो इसको अगर तुम इस 60 को नीचे लेकर जाओगे तो क्या होगा, 15 बाई 60 इज नथिंग बट दी 0.25, ठीक है। तो 1000 बाई 0.25 इज गिविंग अस 4000। मतलब अगर यही रेट से आता रहेगा एवरी 15 मिनट में तो 1 घंटे में इतना आना चाहिए था, राइट। तो 1 घंटे में इतना आएगा। अगर ऑल 15 मिनट्स में अगर 1000 करके आता तो टोटल 1 घंटे में, मतलब टोटल 4 ठो 15 मिनट मिलाकर कितना हो रहा है, 60 मिनट, विच इज 1 आवर में इतना व्हीकल आना चाहिए था, लेकिन उतना आ रहा है। टोटल वॉल्यूम अगर ये ऐड कर दोगे, फर्स्ट 15 में इतना आ रहा है, सेकंड 15 में इतना आ रहा है, थर्ड में इतना आ रहा है, लास्ट में इतना आ रहा है, अगर ये टोटल ऐड कर दोगे तो टोटल 1 घंटे में कितना आएगा, इतना आना चाहिए था, मतलब इतना आएगा, राइट। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस रेट को अगर फॉलो करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 4000 आना चाहिए था। इसीलिए हम बोले थे कि ये रेट विल नॉट बी सेम विद द एक्चुअल टोटल वॉल्यूम, ओके। पर आवर का एक्चुअल टोटल वॉल्यूम के साथ ये दोनों सेम नहीं हो सकता है, ओके। ये तभी सेम होगा अगर क्या होता है, ये दोनों तभी सेम होते तब जब एवरी 15 मिनट, मतलब हर 15 मिनट में सेम वॉल्यूम का अगर ट्रैफिक आता, तब ये तुम्हारा इसका रेट जो भी निकलता इसके साथ मैच करता, ठीक है। अब सेम देखो, इसका भी रेट कितना है, 1100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 60 इज 4400। अगर इस रेट, अगर इस वाला वॉल्यूम एवरी 15 मिनट में आता तो पूरा 1 आवर में इतना व्हीकल आना चाहिए था। इसका मतलब यही है, रेट ऑफ फ्लो ये है, ओके। इतना व्हीकल आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है कितना, 4200 इन दिस केस, ठीक है। सो इट डजंट मीन कि रेट ऑफ फ्लो जो आएगा दैट इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स पर आवर, राइट। तो ये केस नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालना है, सिंपली दिस डिवाइडेड बाय जो भी इंडिविजुअल तुम्हारा इंटरवल में कितना व्हीकल्स आएगा, ठीक है। सपोज अगर ये 10 मिनट होता तो क्या होता है इसका वैल्यू बोलो तो, अगर 10 मिनट में 1000 आता तो इसका रेट ऑफ फ्लो कितना होता? अगर 10 मिनट्स में इतना व्हीकल्स आता देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ फ्लो, बोलो। ये कैसे निकाला इसका रेट ऑफ फ्लो, ये 4000 कैसे निकाला हमने, 1000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 16 किया था, क्योंकि ये 15 मिनट्स का है, राइट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60, राइट। तो आएगा कितना, देखो ये कट जाएगा तो 6000, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन डाटा, ओके। अगर 10 मिनट में आता है तो वेरी गुड। I think this is clear, right? Yes, ma'am. हाँ, अब तुमको देखो क्वेश्चन में आ सकता है कि रेट ऑफ फ्लो निकालो, टोटल वॉल्यूम निकालो, ओके। दिस इज द टोटल वॉल्यूम, मतलब कि एक्चुअली 60 मिनट्स में इतना आएगा, ओके। और इन लोग का करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो ये है। ये दोनों अगर निकाल दिए तो नेक्स्ट टॉपिक निकालने में भी इजी होगा, विच इज द पीक आवर फैक्टर, ओके। सो पीक आवर फैक्टर इज बेसिकली क्या है कि ये हमको यही डाटा दिया रहेगा, सेम डाटा दिया रहेगा, बोलेगा कि फाइंड आउट पीक आवर फैक्टर। अब पीक आवर फैक्टर का मतलब है कि तुम्हारा ये जो फ्लो है, ट्रैफिक फ्लो जो हो रहा है वो का यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, मतलब एक ही नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक अमाउंट ऑफ व्हीकल्स ही आ रहा है, इसी रेट में आ रहा है, एक ही रेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज योर डिफाइंड बाय योर पीक आवर फैक्टर। मतलब कि सपोज ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है, पहले बोलो, मतलब पहले 15 मिनट में आया 1000, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में आया 1100,
सो ये थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक ही नंबर का व्हीकल्स सेम ड्यूरेशन जो भी है इंटरवल में आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आया नहीं है। ओके, अगर ये 1000 होता तो हम लोग बोल सकते दिस इज यूनिफॉर्म, मतलब कि सेम इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है, राइट। एवरी इंटरवल में सेम क्या बोलते हैं इंटरवल Yes, ma'am. टाइम इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है, मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म है, राइट। गाड़ी का जो भी काउंट है वो यूनिफॉर्मली आ रहा है, यूनिफॉर्म रेट में आ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि सपोज इसमें 1000, इसमें 500, इसमें 100, इसमें फिर 2000 आता, मतलब क्या ये यूनिफॉर्मली आ रहा है? नहीं, इसमें मतलब 1000 आया, फिर इसमें 100 आ रहा है, तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। तो फिर इसमें 2000 आ गया, फिर इसमें 500 आ गया, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि कब ट्रैफिक यूनिफॉर्मली आ रहा है, कब ट्रैफिक नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज डिफाइंड बाय द पीक आवर फैक्टर्स। अब बोलो पीक आवर फैक्टर्स में हम लोग जो इंटरवल ले रहे हैं वो 15 मिनट का हम लोग लेंगे। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स इट इज कंसिडर्ड दैट योर ट्रैफिक स्टेबल, मतलब वही 15 मिनट में जो भी ट्रैफिक आएगा वो स्टेबल आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब ठीक है 15 मिनट्स के अंदर में, राइट। इसलिए हम 15 मिनट्स को इंटरवल पकड़ के करेंगे एंड इट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फ्लो इन द पीक आवर। अब ये याद रखना है कि हमको कोई भी हर आवर का नहीं लेना है। हम लोगों ने देखो 5 से लेकर 6 बजे तक लिया है, ये कंसिडर किया है एज अ पीक आवर। ओके, मतलब कि 5 हम लोग थ्रू आउट द डाटा लेंगे, 24 आवर्स हम लोग को सर्वे करना है, राइट। 24 आवर्स काउंट करते रहना है। अब उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम में या 1 घंटे पीरियड में वो मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग दैट सेक्शन ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा थ्रू आउट द 24 आवर्स, राइट। तो देखा गया है कि तुम लोगों ने सबको सुबह से लेकर रात तक किया डाटा, अब देखे सबको इंडिविजुअल 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद देखे कि अच्छा इस आवर में हम लोग देख रहे हैं कि इतना व्हीकल्स आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम व्हीकल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर आवर कैलकुलेटिंग पीक आवर फैक्टर। ओके, तो 5 से लेकर 6 बजे इज द पीक आवर, मतलब इस टाइम में ज्यादा व्हीकल्स आएगा। सो पीएचएफ या पीक आवर फैक्टर का ये है फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या है? दिस इज द आवरली वॉल्यूम, मतलब वो जो 5 बजे से 6 बजे तक कितना 1 घंटा हुआ तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। ओके, दैट इज द आवरली वॉल्यूम, ये है V। और ये वाला क्या है 4 इंटू V मैक्सिमम, मतलब 15 V15 मैक्सिमम। ओके, मतलब देखो VM15 इज मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम, रेट नहीं बोला गया है, रेट नहीं बोला है, ये सिर्फ बोला है वॉल्यूम। ओके, मतलब कि देखो इसमें से जो 4 ठो है डाटा, ये जो 4 ठो डाटा है उसमें से VM15 कौन सा होगा बोलो? फर्स्ट 15 मिनट्स में ये है, सेकेंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ VM15? कौन सा होगा बोलो तो? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट 440, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट 480, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट 3600। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज VM15? VM हम लोगों ने क्या बोला था? मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम, नॉट द रेट, मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम। कौन सा है बोलो वैल्यू? PHF इक्वल्स टू क्या था? V/4 इंटू VM15, ऊपर V विल बी 4200। इन दिस केस V, कैपिटल V क्या बोले थे? आवरली वॉल्यूम। तो आवरली वॉल्यूम यही है, 5 से लेकर 6 बजे तक टोटल व्हीकल्स इतना आ रहा है, सो दिस इज आवरली वॉल्यूम। तो V के जगह पर ये बिठेगा, नीचे 4 इंटू VM15। अब VM15 Yes, में ma'am. कौन सा वैल्यू पुट करना चाहिए VM15 में बोलो? मतलब 15 मिनट का जो भी है डाटा, उसका मैक्सिमम डाटा कौन सा है? 15 मिनट का वॉल्यूम जो भी रहेगा उनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट इज VM15। अब बोलो ये कॉलम और ये कॉलम में से कौन सा VM15 है? सेकंड वाला। सेकेंड कौन सा सेकेंड? यहाँ टोटल 8 तो डाटा है, 8 डाटा है, राइट। ये से 8 में से कौन सा वैल्यू होगा VM15?
वॉल्यूम फॉर टाइम इंटरवल व्हीकल्स में और सेकंड वाला। वॉल्यूम फॉर सेकेंड, ये यस 1100, मैम, यस मैम, यस मैम। ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है तुमको? फर्स्ट 15 मिनट में आया 1000, सेकेंड 15 मिनट पहले बोलो तो VM15 कौन सा कॉलम से लेंगे, ये वाला कॉलम से ना ये वाले कॉलम से? वॉल्यूम बोला गया है, रेट नहीं बोला है, राइट? सी दिस वैल्यू इज व्हाट, VM15 इज क्या है, देखो मैक्सिमम 15 मिनट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ये वाला से आएगा, ये सब है वॉल्यूम, राइट? तो यहाँ पे ये वाला कॉलम हम यूज ही नहीं करेंगे, ओके? तो यहाँ से लेंगे, अब VM15 यहाँ से लेंगे। अब VM15 मतलब क्या है, फर्स्ट VM15, फर्स्ट V15 फर्स्ट है वाला ये होगा, वाला, फर्स्ट वाला 1000 फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट V15 है ये वाला, सेकेंड V15 है ये वाला, थर्ड V15 है ये वाला, फोर्थ V15 है ये वाला। अब हमको फर्स्ट वाला होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है, मतलब 3 नंबर 1 2 0 0। मतलब इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे ना, तो फर्स्ट कैसे Yes, हुआ, yes, ma'am. मैक्सिमम तो 1200 1200 है, यस 1200, ठीक है। तो वो 1000 वाला, हाँ, तो Yes, ma'am. ये है VM15, ओके, नॉट दिस वन, दिस इज रेट, Yes, ma'am, yes, ma'am. दिस इज वॉल्यूम। थर्ड वाला होगा 1200। ओके, तो यही यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, सेम इक्वेशन है, देखो PHF का फॉर्मूला ये है V इंटू 4 इंटू VM15, ओके? तो V हम लोग का है 4200, VM15 है 1200, इधर करो आएगा 0.875, ओके? अब तुम कभी कभी अगर बोलोगे कि मैम हम ये यूज नहीं करते, ये भी तो कर सकते थे, दोनों तो सेम ही है, हाँ कर सकते हो ये वाला, ठीक है, सिर्फ वहां पे क्या होगा, ये 4 नहीं आएगा, इन दिस केस ये वाला फॉर्मूला, ओके? सो आवरली वॉल्यूम बाय मैक्सिमम रेट निकाल लेना, ओके? तो 4200 बाय 4, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट कौन सा है, मैक्सिमम ये वाला है 4800, देखो सेम वैल्यू आएगा। जब ये यूज करोगे तो 4 रहेगा यहाँ पे, ओके? कुछ नहीं, ये कन्वर्शन किया गया है, मतलब इसी को ही कन्वर्ट करके ये वाला आया है, वही किया है यहाँ पे, ओके? सो 0.875, अब PHF का वैल्यू इट विल लाई बिटवीन 0.25 टू 1, ठीक है? जितना 1 की तरफ जाएगा तुम्हारा PHF का वैल्यू, हम बोलेंगे उतना यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, मतलब उतना यूनिफॉर्म नंबर ऑफ व्हीकल्स आर कमिंग क्रॉसिंग दैट सेक्शन। देखो ये वाला क्या है, टुवर्ड्स टू 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स टू 1, राइट? 1 के आसपास में है, इसीलिए देखो इसका यूनिफॉर्मिटी थोड़ा बहुत सामने मतलब 1000 100 का ये वेरिएशन में आ रहा है, 100 व्हीकल्स का वेरिएशन में आ रहा है, सो ये थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मली आ रहा है, ठीक है? पूरा यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म है, ओके? तो कब ये पूरा यूनिफॉर्म, कब ये वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा, जब देखोगे ये पूरा का पूरा अगर सेम नंबर आएगा, तब तुम्हारा PHF का वैल्यू 1 आ जाएगा, ओके? तो जैसे फॉर एग्जांपल, और कब तुम्हारा 0.25 आएगा, 0.25 तभी आएगा जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, मोस्ट नॉन यूनिफॉर्म, या हम लोग बोल सकते हैं व्हेन ऑल द ट्रैफिक इज कंसंट्रेटेड इन 1 15 मिनट पीरियड। से फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें देखो फर्स्ट 15 में कोई व्हीकल नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में आया 2000 टोटल व्हीकल्स, फोर्थ में भी नहीं आया, ठीक है? तो सबको ऐड कर दोगे तो क्या, फर्स्ट व्हीकल फर्स्ट 15 में 0, सेकंड में भी 0, थर्ड में 2000, नेक्स्ट 15 में 0। तो व्हाट इज द आवरली वॉल्यूम, ऑब्वियसली सबको ऐड कर देंगे, 15 15 15 60 मिनट्स का टोटल काउंट ऐड कर देंगे, राइट? सो दिस इज द आवरली वॉल्यूम, यहाँ पे आवरली वॉल्यूम बिठा दो 2000, ओके? और मैक्सिमम कौन सा है, VM, यही है मैक्सिमम, और तो 00 है, यहाँ पे 00 पुट कर दोगे तो देखो 0.25 आ रहा है, ओके? सो इन दिस केस योर वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.25, मतलब कि अगर एक ही 15 मिनट इंटरवल में सब व्हीकल आएगा, बाकी में नहीं आएगा, एक में ही आएगा सबका सब, राइट? इन दैट केस दैट इज द मोस्ट नॉन यूनिफॉर्म, मतलब बाकी में नहीं आया, बस एक ही 15 मिनट इंटरवल में आ गया, मतलब क्या, वो बाकी के टाइम खाली है रास्ता, और एक ही 15 मिनट बहुत सारा ज्यादा पीक हो गया, राइट? सो दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म, ओके? तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सो 0.25 वैल्यू देखो यहाँ पे आ रहा है। अब 1 कब आएगा, 1 जब आएगा जब सबका सब 15 मिनट में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, देखो इसमें भी 1000, इसमें 1000, इसमें 1000, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 60 मिनट्स में कितना आएगा, 15 15 15 15 इज 60 मिनट्स में इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है, सो
4000 इज द वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे V इक्वल्स टू 4000 होगा, तो वो यहाँ पे देखो VM 15 सब तो एक ही है, तो कोई भी एक ले लो 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, सो दिस इज व्हाट, अब इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म लग रहा है तुमको, बोलो। ये वाला यूनिफॉर्म लग रहा है कि ये वाला नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, सॉरी ये वाला यूनिफॉर्म लग रहा है ना, ये वाला यूनिफॉर्म, सेकंड वन दूसरा दूसरा यूनिफॉर्म Second है, राइट। इसीलिए Yes, हम ma'am. बोले थे पीएचएफ निकालो, पीएचएफ का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब दिस इज मोर यूनिफॉर्म, मतलब ये तो पूरा यूनिफॉर्म ही है। अब जितना 1 की तरफ आएगा वैल्यू, मतलब ये यूनिफॉर्म हो रहा है ट्रैफिक, ओके, टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। वेरएज अब जितना ये 0.25 की तरफ आएगा, ये है मोस्ट नॉन यूनिफॉर्म, ओके। तो इस वजह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग पीएचएफ दैट कि तुम्हारा ट्रैफिक कंडीशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ओके। अब आते हैं कि कहाँ पे होगा, देखो अंडर वेरी कंजेस्टेड कंडीशन योर पीएचएफ विल बी टेंडिंग टू 1 ऑब्वियसली, राइट। मतलब इतना सारा व्हीकल्स है, क्या है, हर आवर मतलब हर 15 मिनट में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करेगा रास्ता को, राइट। तो ड्यूरिंग दैट पीक आवर, लेकिन ये याद रखना 24 आवर्स का बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ पीक आवर का बात कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर पीक आवर में एवरी 15 मिनट में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स कब आने का चांसेस है, व्हेन देयर इज कंजेस्टेड, तब पीएचएफ का वैल्यू देखो टेंड्स टू 1 होता है, ओके। और ये सब याद रखना है तुम्हारा क्या बोलते हैं एमसीक्यूज वगैरह में ये सब आएगा, ओके। सो प्रैक्टिकली क्या होता है कि पीएचएफ का वैल्यू टेंड्स टू 0.7 होता है फॉर रूरल रोडवे, ओके। और पीएचएफ विल बी टुवर्ड्स 1, एकदम 1 की तरफ और जा रहा है, कितना 0.98 इन डेंस अर्बन, मतलब ये तुम्हारा जो कोलकाता एरिया है ये वाला रूरल हाईवे जो भी है वहां पे, ओके। रूरल रोडवे, सॉरी हाईवे नहीं, रोडवेज में, ओके। तो दिस इज द केस, तो जितना कंजेस्टेड होगा जितना उतना ही पीएचएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, ओके। अच्छा कितना बजा अभी, ओके। तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, ओके। वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, Okay, ma'am. ओके। देन आई होप उतना दूर तक क्लियर है, ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यस मैम। ओके ओके, वेट, ठीक है, ठीक है, आ सकते तुम लोग, थैंक यू, Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.